Assalamualaikum students, welcome back to English class, and today we are gonna read chapter number 4 of your book on page number 19, Mohenjo-daro. Mohenjo-daro, or the Mount of the Dead, is one of the oldest cities in the world. मोइंजो-दड़ो या मुर्दों का टीला दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है. It is at a distance of 27 kilometers from Larkana on the right bank of the river Indus. और ये लारकाना से 27 किलोमीटर के फासले पर दरियाई सिंध के राइट साइड पर वाक़ है. Few people live there today. आज भी वहाँ कुछ लोग रहते हैं. But 4,500 years ago, लेकिन 4,500 साल कबल, it was a large busy city. ये एक बहुत ही बड़ा और मसरूफ़ शहर था. Nobody knew anything about it until 1922, when some villagers found pieces of old smooth pots and old bricks at the place. लेकिन 1922 से पहले कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं जानता था, जब गांव के कुछ लोगों को पुराने और चिकने बर्तनों के और ईंटों के टुकड़े मिले. Where now stands the uncovered city, जहाँ पर अब एक दरियाफ्त शुदा शहर मौजूद है. These pieces of old pots and bricks were brought to Sir John Marshall. बर्तनों के और ईंटों के ये पुराने टुकड़े सर जॉन मार्शल के पास लाए गए. एन इंग्लिश सिविल सर्वेंट, जो कि एक इंग्लिश सिविल सर्वेंट हैं, whose work it was to look after historical remains, जिनका काम तारीख़ी इमारतों और खंडरात की देखभाल करना है. Like an ancient buildings and other old things such as these pieces of pots and bricks. और दूसरी कदीम चीज़ों की, जैसे ये बर्तनों और ईंटों के टुकड़े थे. He was himself very interested in history and was anxious to find out about this remains. वो ख़ुद भी हिस्ट्री में, तारीख़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे और इन तारीख़ी खंडरात के बारे में जानने का उनके अंदर बहुत ज़्यादा तजस्सुस था. So when he looked at them carefully, he at once knew that they were pieces of very old pots. तो इसलिए जब उन्होंने इन टुकड़ों को बहुत गौर से देखा तो वो फ़ौरन समझ गए कि ये बहुत पुराने बर्तनों के टुकड़े हैं. About the bricks he said, ईंटों के बारे में उन्होंने कहा, Perhaps there was once a town or a city which lies under these mounds of clay and sand. शायद यहाँ पर इस रेत और मिट्टी के टीले के नीचे कोई शहर आबाद था. Let us dig here. आओ हम इसकी खुदाई करें. Maybe we shall uncover the remains of an old city. शायद हम एक कदीम शहर के खंडरात दरियाफ्त कर लें. So the men started digging. तो लोगों ने वहाँ की खुदाई शुरू कर दी. And as they dug more and more, such pieces came up. और वो जैसे जैसे खुदाई करते गए, इस तरह के मज़ीद टुकड़े सामने आते गए. Till there appeared bit by bit a city of straight roads and well-built houses. यहाँ तक कि सीधी सड़कों वाला एक रोड और अच्छे तामीर किए हुए घर वाला एक पूरा शहर दरियाफ्त हो गया. You can imagine how surprised and excited the people were. आप तसव्वुर कर सकते हैं कि वो लोग कितने ज़्यादा हैरान और कितने ज़्यादा खुश होंगे या खुश थे. When they saw all this coming up from what they had so far taken to be only mounds of clay and sand. जब उन्होंने देखा कि ये सब कुछ उसमें से निकल रहा है जिसे वो अब तक सिर्फ मिट्टी और रेत का टीला समझ रहे थे. Each house was made of large baked bricks and had a bathroom and servant quarters close by. हर मकान पक्की ईंटों से बना हुआ था और उसमें एक बाथरूम और सर्वेंट क्वार्टर्स भी मौजूद थे. Covered drains ran beside the streets. यहाँ तक कि गलियाँ भी पक्की ईंटों की बनी हुई थी. Carts and other forms of transport could come right to the center of the town. गाड़ियाँ और दूसरी किस्म की ट्रांसपोर्ट जो है वो शहर के मरकज़ में आ सकती थी. You can still see the great hall where grain was stored. आप अब भी उस बड़े हॉल को देख सकते हैं जहाँ अनाज, मतलब खाने पीने की चीज़ों का ज़ख़ीरा किया जाता था. There's a wide road in the middle of which was the shopping center with shops on both sides. और आज भी वहाँ एक चौड़ी सड़क है जिसके दरमियान में एक शॉपिंग सेंटर है और जिसके दोनों साइड्स शॉप्स मौजूद हैं. This road continues
onto the houses of the workmen. और ये रोड आगे चलकर जो वहाँ के वर्कमैन थे, जो वहाँ के मज़दूर थे, उनके घरों तक, उनके मकानों तक जाती है. The people of this city must have been great traders, with the river Indus so near and the sea within easy reach. इस शहर के लोग यकीनन बहुत बड़े ताजर रहे होंगे क्योंकि दरिया सिंध इनके बहुत करीब था और समंदर भी इनकी पहुँच में था. The countryside must have been fertile since wheat, rice and cotton grew there. इनका देहाती इलाका यकीनन बहुत ज़रख़ेज़ होगा जहाँ वो गंदम, चावल और कपास उगाते थे. The farmers also kept cattle. किसान मवेशी भी रखते थे. There were skilled craftsmen who worked in gold, silver and ivory. इस शहर में एक्सपर्ट्स यानी माहिर कारीगर भी थे जो सोने, चांदी और हाथी के दांत का काम करते थे. Clay dolls and cars were made for the children to play with. मिट्टी के खिलौने और गाड़ियाँ वगैरह बच्चों के खेलने के लिए बनाए जाते थे. We also have an idea of the dresses worn by the ruling class, the priests and the elders from the seals of many kinds that have been found there. बहुत सारी तरह की मोहरें, बहुत सारे किस्म की मोहरें जो वहाँ से मिली हैं, उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो उनका रूलिंग क्लास था, मतलब जो उनका हुक्मरान तबका था, जैसे प्रेस्ट मतलब पादरी, मौलवी या पंडित, और उनके बुजुर्ग, उनके एल्डर्स, बड़े लोग किस तरह का लिबास पहनते थे. दे वॉर लॉन्ग लूज ड्रेसेस. वो लोग लंबे और ढीले कपड़े पहनते थे. Nearby is a museum where interesting objects found from मोइंजोदड़ो are on exhibition. करीब ही एक म्यूज़ियम है जहाँ मोइंजोदड़ो से मिली हुई इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है वो नुमाइश के लिए एग्जीबिशन में रखी हुई हैं. These include seals, jewelry, toys, weapons and painted pottery. और इन चीज़ों में मोहरें, ज़ेवरात, खिलौने, हथियार और पेंटेड पॉटरी मतलब कलरफुल बर्तन या नक्शो निगार वाले जो बर्तन होते हैं वो शामिल हैं. द बेस्ट फाइंड ऑफ मोइंजोदड़ो इज़ द हेड ऑफ अ बुल विच वॉज यूज्ड एज अ सील. मोइंजोदड़ो की सबसे बेहतरीन दरियाफ्त एक बैल का सर है जो मोहर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था. अ मेटल स्टैचू ऑफ अ डांसिंग गर्ल हैज़ ऑल्सो बीन फाउंड. एक डांसिंग गर्ल का एक मेटल का स्टैचू मतलब एक धात का मुजस्मा भी मिला है. देयर आर मेटल टूल्स टू. और इसके अलावा धात के औजार, धात के टूल्स भी मिले. इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस मेटल ऑब्जेक्ट्स दैट द प्रोबेबल एज ऑफ द सिटी इज़ बीइंग गिवन एज अबाउट 4500 ईयर्स. और ये इन धात की चीज़ों की वजह से ही इस शहर का जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये शहर कितना पुराना है, मतलब जो अंदाज़ा लगाया गया है, जो एस्टिमेट लगाया गया है कि ये शहर 4500 साल कबल पुराना है, वो इन धात की चीज़ों की वजह से ही लगाया गया. फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक तवील अरसे तक, दिस पीपल लिव्ड अ हैप्पी लाइफ. वहाँ के लोगों ने खुशहाल ज़िंदगी गुजारी. दे वर क्वाइट रिच एंड ट्रेवल्ड फ्राम प्लेस टू प्लेस ऑन बिजनेस और ऑन प्लेजर. ये लोग काफ़ी अमीर थे और कारोबार और तफरी के लिए एक जगह से दूसरी जगह सफ़र भी करते थे. देयर सिटी वॉज वेल प्लान्ड एंड क्लीन. इनका शहर एक वेल प्लान्ड सिटी था, मतलब एक अच्छे मंसूबे के तहत तामीर किया गया था और साफ़ सुथरा भी था. द रेन वाटर डिड नॉट रिमेन ऑन द स्ट्रीट्स. बारिश का पानी गलियों में नहीं रुकता था. वी डू नॉट नो व्हाट हैपेंड टू दैम लेटर. और हमें नहीं पता कि बाद में उनके साथ क्या हुआ. Either they were raided from the north or some great earthquake destroyed them. या तो शुमाल की तरफ से, नॉर्थ साइड से उन पर कोई हमला किया गया, या फिर किसी अर्थक्वेक ने, किसी ज़लज़ले ने उनको तबाह कर दिया. वी डू नॉट नो, हमें नहीं पता. No one has yet been able to determine the meaning of the words written on the seals and on the pottery. और कोई भी शख्स अब तक उनके बर्तनों और मोहरों पर लिखे हुए अल्फाज को नहीं पढ़ सका, नहीं जान सका और नहीं बता सका. Much could be learned if the language experts are able to decipher these words. इनके बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है कि अगर पुराने ज़मानों के माहिर इन अल्फाज को पढ़ सकें. Learned men and visitors often come to the site. बहुत ज़्यादा काबिल लोग और सयाह अक्सर इस जगह आते हैं, इस जगह को विज़िट करते हैं.
दे कम नॉट ओनली फ्राम पाकिस्तान बट ऑल्सो फ्राम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये लोग ना सिर्फ पाकिस्तान से आते हैं बल्कि पूरी दुनिया से आते हैं। लेट अस होप दैट देयर एफर्ट्स सक्सीड इन डिसिफरिंग दिस वर्ड्स। और हम उम्मीद करते हैं कि इन अल्फाज को समझने में इनकी कोशिशें कामयाब हो जाएं। We will then know a great deal more than we do now about this dead civilization। और फिर इस तरह हम इस मुर्दा तहज़ीब के बारे में जितना अब जानते हैं इससे कहीं ज़्यादा जान सकेंगे। That's all for now. Thank you.